اداروں کی رپورٹس تھی کہ فائنل کال میں لاشوں کی سیاست ہوگی. یہ چاہتے تھے لاشیں ملیں کیونکہ اچھی نیت سے نہیں آئے تھے. احتجاج کرنے والوں سے 45 بندوقیں برآمد کی گئی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی پریس کانفرنس. کہا مراد سعید نہ صرف احتجاج میں شریک تھا بلکہ جتھے ساتھ لایا. مراد سعید تربیت یافتہ دہشت گردوں کے ساتھ موجود تھا. مراد سعید کی گرفتاری کے لیے وزیر اعلیٰ ہاؤس پر چھاپا مارنا اچھا نہیں لگتا. جب کوئی غیر ملکی وفد آتا ہے احتجاج کی کال دی جاتی ہے. ریاست گھٹنے نہیں ٹیکتی، رٹ قائم کرتی ہے. جتھوں کو آگے بھیج کر خود پیچھے رہ کر حملوں کی ترغیب دی. اپنی ناکامی اور فرار کو چھپانے کے لیے جھوٹی کہانی گھڑی گئی. پی ٹی آئی کے پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا. تربیت یافتہ شرپسند اور غیر قانونی افغان شہری احتجاج میں شامل تھے. ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے پولیس رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا. پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے کوئی ٹکراؤ ہوا، نہ ہی وہ تشدد کی روک تھام کے لیے تعینات تھی. قیادت کے ہمراہ مسلح گارڈز اور مظاہرین کے مسلح شرپسندوں نے اندھا دھند فائرنگ کی. پاک فوج کی تعیناتی کا مقصد اہم تنصیبات کو محفوظ بنانا تھا. خود ساختہ پرتشدد حالات میں پی ٹی آئی قیادت نے صورتحال سنبھالنے کے بجائے راہ فرار اختیار کی. پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا پر منظم پروپیگنڈا شروع کر دیا. مبینہ ہلاکتوں کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی جا رہی ہے. اسلام آباد کے بڑے اسپتالوں کی انتظامیہ نے ہلاکتوں کی رپورٹ کی بھی تردید کی. من گھڑت سوشل میڈیا مہم کے دوران پرانے اے آئی سے تیار جھوٹے کلپس کا استعمال کیا جا رہا ہے. سنجانی کے بجائے ڈی چوک کیوں گئے؟ بانی پی ٹی آئی کا حکم کیوں نہیں مانا گیا؟ پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی میں ارکان کے سوالات. علی محمد خان کی مبینہ آڈیو لیک ہو گئی. بولے ہمارا مقصد احتجاج کے ذریعے مذاکرات کرنا تھا. بانی نے ڈی چوک آنے کا نہیں سنجانی میں بیٹھنے کا کہا تھا اور مذاکرات کرنے کا بھی حکم دیا تھا. وزیر اعلیٰ نے بھی سنجانی پر اتفاق کیا. پھر کس کے کہنے پر ڈی چوک گئے؟ ہمیں لیڈر کے حکم پر سنجانی میں رکنا چاہیے تھا. بشرا بی بی سمیت کسی کے پاس حق نہیں کہ بانی کے فیصلے کے اوپر فیصلہ دے. احتجاج میں بشرا بی بی کی شمولیت کا بانی کو پتہ نہیں تھا. آڈیو کے مطابق علی محمد نے سوال اٹھایا علیمہ خانم نے خود کیوں احتجاج کی کال دی؟ بانی نے تو کہا تھا ہماری پارٹی میں موروثیت کی کوئی جگہ نہیں. احتجاج کی کال بیرسٹر گوہر کو دینی چاہیے تھی. بانی نے سندھ اور بلوچستان میں الگ احتجاج کی بھی مخالفت کی تھی. ہمارے 3000 کارکنوں کو گرفتار کیا گیا، کئی لاپتہ ہیں. احتجاج کرنے والے اپنے بے قصور لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کر رہے تھے. احتجاج کی کال بانی پی ٹی آئی نے دینی ہے. ان کی ہر کال پر ہر دم تیار ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پریس کانفرنس. کہا صوبے کے حالات پر اے پی سی بلانے کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے، گورنر کے پاس نہیں. گورنر فارغ آدمی ہے. گورنر کی پارٹی کو جب ووٹ ملیں تو وہ یہ سب کر لیں. میں پرچی والوں کے نہیں عوامی مینڈیٹ کے ساتھ چلوں گا. پارا چنار کا معاملہ نفرت کا ہے. لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد ہیں. ذمہ داروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے. علی امین گنڈاپور کا سی ٹی ڈی ہیڈ کوارٹرز کا دورہ. کہا خیبر پختونخوا پولیس پورے ملک کی جنگ لڑ رہی ہے. دہشت گردی کے خاتمے کا مشن. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف 2 بڑی کارروائیاں. 8 خارجی ٹھکانے لگا دیے. پاک فوج کے 2 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے وطن کی آن پر قربان. بنو کے علاقے باقا خیل میں آپریشن. 5 خارجی مارے گئے، 9 زخمی ہوئے. فائرنگ کے شدید تبادلے میں سپاہی افتخار حسین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. خیبر کے علاقے شگئی میں آپریشن میں 3 خارجیوں کو ٹھکانے لگایا، 2 گرفتار کر لیے. فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن محمد زہیب الدین بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے. آئی ایس پی آر کا کہنا ہے ہلاک خارجی دہشت گردی کی متعدد کارروائیوں میں ملوث تھے. علاقے میں ممکنہ خارجیوں کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے. سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں. وزیر اعظم کی فتنہ الخوارج کے خلاف کامیاب آپریشن پر سیکیورٹی فورسز کی پذیرائی. جامع شہادت نوش کرنے والے کیپٹن محمد زہیب الدین اور سپاہی افتخار حسین کو خراج عقیدت. بانی پی ٹی آئی کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبروں میں صداقت نہیں. وہ اپنے سیل میں موجود ہیں اور ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے.
जेल जराये का कहना है बानी पीटीआई के सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है। पुलिस ने बानी पीटीआई की 28 सितंबर के एहतजाज के मुकदमे में गिरफ्तारी डाली है। जेल मैनुअल के मुताबिक उन्हें सहूलतें दस्तयाब हैं। पीटीआई सियासी कमेटी का इजलास, एलामिये में कहा बानी पीटीआई की सेहत और सलामती निहायत हसास मामला है। कौम के खदशात संगीन तर हो रही हैं। बानी पीटीआई तक अहले खाना, वकला और जमात के जिम्मेदारान की रसाई बहाल की जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की मईशत को तबाह करने के मंसूबे बना रही है। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल कहते हैं पीटीआई मनफी सियासत छोड़कर ऐवानों में आए, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से अपनी सियासत न चलाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा एक सूबे से कुछ इंतशारी उठकर मुल्क को मफलूज करना चाहते हैं। गैर मुल्की दहशतगर्दों को मुसल्लह करके दारुल हुकूमत पर हमला कराते हैं। रियासत को एक्शन लेना चाहिए। सियासी इख्तलाफ अपनी जगह, क़याम अमन की कोशिशों में हम सब एक हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी का कुर्रम के हालात पर जरगे से खिताब, कहा कुर्रम में दोनों फरीकैन के दरमियान आर्जी फायर बंदी कर दी गई है। मुल्क दुश्मन अनासिर दो फरीकों के दरमियान गलत फहमियां पैदा कर रहे हैं। एपीसी में कुर्रम की सूरत हाल पर गौर होगा। हुकूमत दोनों फरीकैन के दरमियान मुस्तकिल हल के लिए जल्द अमन फार्मूला पेश करेगी। मोबाइल डेटा सुस्त रवि का शिकार, सार्फिन अजियत से दो चार। कराची, लाहौर और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंटरनेट की रफ्तार मुतासर होने से मुश्किलात का सामना। सार्फिन का कहना है कई इलाकों में वाईफाई सर्विस में भी खलल आ रहा है। इंटरनेट सुस्त होने से ऑनलाइन कारोबार मुतासर हो रहा है। ऑनलाइन तालीम हासिल करने वाले तलबा को भी मुश्किलात का सामना है। ट्रॉफी के वेन्यू पर डेडलॉक खत्म करने के लिए नया फार्मूला जेर गौर। जराये के मुताबिक पाकिस्तान चाहता है नया फार्मूला कम से कम 3 साल के लिए तय किया जाए जो तमाम आईसीसी इवेंट्स पर लागू हो। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल और वेन्यूज का मामला अगले 48 घंटे में हल होने का इम्कान। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर यकतरफा फैसला कबूल नहीं करेंगे। ऐसा रास्ता निकालेंगे जिसमें क्रिकेट की जीत हो। हमारे लिए सबसे जरूरी पाकिस्तान की इज्जत है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए। ग्रेग बार्कले की जगह ओहदे का चार्ज संभाल लिया। जय शाह का कहना है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन बनना बाइस फख्र है। आईसीसी डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स की हिमायत और एतमाद पर शुक्रगुजार हूं। जय शाह के लिए पहला बड़ा चैलेंज चैंपियंस ट्रॉफी का मसला हल करना है। कराची में डाकुओं ने एक और शहरी को मौत की नींद सुला दिया। इस्लामिया कॉलेज के करीब डकैती मज़ाहमत पर दुकानदार को सीने में गोली मारकर कत्ल कर दिया। शेखुपुरा में खवातीन टीचर्स और तलबा से मुबैना ज्यादती करने वाला स्कूल प्रिंसिपल गिरफ्तार। निजी स्कूल के प्रिंसिपल अरसलान का ज्यादती की वीडियोस फरोख्त करने का इंकशाफ। वीडियोस वायरल करने की धमकियां देकर ब्लैकमेल भी करता रहा। पंजाब में शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों को मुफ्त इंसुलिन घरों पर पहुंचाई जाएगी। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर टॉप 1 डायबिटिक बच्चों की रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फबारी का आलाम ने सफेद चादर ओढ़ ली। स्वात में मौसम मजीद सर्द हो गया। सिंधी कल्चर डे पर शहर शहर तकरीबात का इनकाद। सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंध की सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की सिंध के यौम सकाफत पर मुबारकबाद। कहा सिंध सूफियों की सरजमीन है जो सदियों से अमन और मोहब्बत की रोशनी का मीनार रही। आज का दिन वादी मेहरान की भरपूर सकाफती विरसे, शानदार रिवायात और लाजवाल इक़्तिदार का मजहर है। कराची में अमरीकी काउंसिल खाना सिंध के सकाफती दिन की खुशियों में शरीक। अमरीकी काउंसिल जनरल स्कॉट अबूम की मुबारकबाद। कहते हैं आज सिंध की रिवायात को खिराज तहसीन पेश करने का दिन है। इस सरजमीन पर सूफिया कराम की तालीमात और शायरी ने ऐसी नस्लों को परवान चढ़ाया जो रवादारी, इत्तेहाद, पुरअमन बकाए बाही और बर्दाश्त की अलामत है।
जर्मन काउंसल जनरल डॉक्टर रॉडिगर भी सिंधी सकाफत के रंगों में रंग गए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की सिंधी कल्चर डे की मुबारकबाद। कहा, सिंधी कल्चर डे की खूबसूरती सिंधी अजरक और टोपी है। सिंधी कल्चर डे के हवाले से सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब का इनेकाद किया गया। कराची में कस्टम्स ने इंपोर्ट की गई बैटरीज के 8 कंटेनर स्क्रैप जाहिर करके निकाल दिए। एनफोर्समेंट टीम ने गैर कानूनी तौर पर क्लियर किए गए कंटेनर्स तहवील में ले लिए। 8 कंटेनर्स मुबैना तौर पर 2.5 करोड़ रिश्वत लेकर ग्रीन चैनल के जरिए क्लियर किए गए। बैटरीज की लैब रिपोर्ट आने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बोल्टन मार्केट में रेंजर्स और कस्टम्स का मुश्तरका ऑपरेशन। करोड़ों रुपए मालियत की नॉन कस्टम पेड अशिया बरामद। सिगरेट, इलेक्ट्रिक सिगरेट, शीशा फ्लेवर, घड़ियां, चॉकलेट, साबुन, परफ्यूम, कॉस्मेटिक्स और दीगर अशिया शामिल। खैबर और वजीरिस्तान में छतें गिरने के वाकयात में 8 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर के इलाके ज़ख़ाक़ील इलाकों में घर की छत गिरने से 5 अफराद जान से गए। जनूबी वजीरिस्तान में कमरे की छत गिर गई। बाप, बेटा और बेटी जाँ बहक हुए। फिर सरमायाकारी के लिए महफूज माहौल मांगते हैं तो मुर्तजा वहाब को गुस्सा आ जाता है। कराची भर में नलकों में पानी नहीं, पैसे दे तो टैंकर हाजिर हो जाता है। K4 मंसूबा कब बनेगा, सूबाई हुकूमत भी नहीं जानती। जमात इस्लामी कराची के अमीर मनम जफर खान कहते हैं, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, टैंकर और डंपर शहरियों को कुचल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। गजा में इस्राएली फौज के हमले जारी। गुज़श्ता 24 घंटे में मजीद 100 फलस्तीनी शहीद। जबालिया पर इस्राएली तैयारों की बमबारी में 40 अफराद जाँ बहक। खान यूनुस में 12 फलस्तीनियों की शहादतें। वॉल किचन सेंटर के 3 एहलकार भी इस्राएली बमबारी का निशाना बने। बस्ती गजा में सूप बनाने वाला मारूफ शेफ भी इस्राएल के ड्रोन हमले में शहीद। गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात का फिर आगाज। हमास का वफ्द मुज़ाकरात के लिए मिस्र पहुंच गया। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी। तल अवीव में हजारों अफराद का मार्च। हुकूमत से यरगमालियों को फौरी रिहा कराने का मुतालबा। लंदन में इसराइली जाहिलियत के खिलाफ बड़ा एहतजाज। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए चिली और बोस्निया में भी रैलियां निकाली गईं। शाम के शहर हलब पर अस्करियत पसंदों के कब्जे के बाद रूस ने जंगजुओं पर फजाई हमले शुरू कर दिए। रूसी वजारत दिफा ने कहा, फजाइये ने शामी फौज की मदद के लिए अस्करियत पसंदों को निशाना बनाया। शामी फौज ने दावा किया हमले में दर्जनों जंगजू मारे गए। गुज़श्ता रोज अस्करियत पसंदों ने हलब का कंट्रोल संभाल लिया। खलीज ताउन तंजीम का इजलास आज कुवैत में होगा। खित्ते की मौसमी सूरत हाल पर बात होगी। अमीर कतर समेत दीगर खलीजी ममालिक के सरबराहान कुवैत पहुंच गए। डॉलर की मुतबादल करेंसी लाए तो 100% टैक्स लगाऊंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को खबरदार कर दिया। कहा, बैनुल अक़वामी मईशत में अमरीकी डॉलर के मुतबादल की कोई गुंजाइश नहीं। ट्रंप ने भारतीय निजात कश्यप पटेल को डायरेक्टर FBI नामजद कर दिया। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में नेपाल को 10 विकेट से शिकस्त दी। 95 रन का हदफ छठे ओवर में हासिल किया। फाइनल मंगल को खेला जाएगा। जूनियर हॉकी एशिया कप में पाकिस्तान की फतुहात का सिलसिला जारी। चीन, बांग्लादेश, ओमान के बाद कौमी टीम ने ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में मलाइशिया को भी शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने मलाइशिया के खिलाफ 4-1 से कामयाबी समेटी। और पथरीले ट्रैक और मुंह जोर मौजों पर रफ्तार की जंग। स्वाबी में इंडर वाटर जीप रेस का एहतमाम। महकमा सयाहत के तहत पेशावर में विंटेज एंड क्लासिक कार शो। शुरका रिवायती खता डांस से भी महसूस हुए।